Hello students, today I am going to discuss expenditure method under national income. We know factor income earned by factor of production is spent in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by the firm. Factor income earned by the factors of production is spent in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by the firm. तुम लोग साइड बाय साइड लिखते रहना. So here it is written factor income earned by the factors of production is spent is written here in the form of expenditure. इसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलेंगे. एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म. फर्म को चलने के लिए वो गुड्स एंड सर्विस ऑब्वियसली परचेज करना पड़ता है. अभी दिस मेथड, ये जो मेथड है, दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर incurred by household, business firm, government and foreigners. So national income as sum total of final goods final expenditure incurred by household, business firm, government and foreigners are included here. So this method measures in national income as sum total of expenditure incurred by household, business firm, governments and foreigners. The total final expenditure is equal to gross domestic product at market price. So we have to write that thing. Total means summation. Final expenditure is equal to GDP-MP, means total final expenditure is equal to gross domestic product at market price. We have to remember that formula. Okay. This method also known as income disposal method. This method also known as income disposal method. Okay, this is the main important point of that expenditure method. You have to remember that method, that point. So first we have to discuss that expenditure factor income earned by the factors of production is spent in the form of expenditure. Next, national income as a sum of total final goods expenditure is incurred by the household, business firm, government and foreigners. The summation of final expenditure is equal to GDP-MP in this method. This method also known as income disposal method. So in my next slide, if you remember that the value added method
some value addition by all the production units distributed in the form of factor payment, that is in income method. We know that things. And value of final goods produced will be there. So मैं लिखता हूँ ये चीज़, वैल्यू एडेड मेथड जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये है, सॉरी, वैल्यू एडेड मेथड जो इज इक्वल टू है सम ऑफ वैल्यू एडिशन by all the production units. Okay, all the production units जो था वैल्यू एडिशन का, वो इक्वल टू था वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड का, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जीडीपी. मैं दोबारा से बोलूंगा, वैल्यू एडेड मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था, सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, सम ऑफ वैल्यू एडिशन, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, वैल्यू एडिशन ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, वैल्यू ऑफ फाइनल जो था वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विद इन दैट टेरिटरी जो था जीडीपी, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते थे. अभी ये जो वैल्यू एडिशंस में बोल रहा हूं, उसको अगर बोलूंगा वो है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट. ओके, ये ऑलरेडी हम लोगों का इनकम मेथड में हो चुका है, जिसको हम लोग इनकम मेथड में जान चुके थे ये चीज. ओके, तो क्या मैंने बोला, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, वैल्यू एडिड मेथड वो है सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, जो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते थे. और वैल्यू एडिशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, जो इनकम मेथड में हम लोग वो जान चुके हैं. अभी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो है वो दो तरीके का है. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर टू टाइप्स. These are consumer goods and capital goods. Consumer goods consumed by consumer. Consumer goods consumed by consumer, and capital goods consumed by, capital goods means investment within that economy. Investment within or outside that economy. So that capital goods means investment in simple term, and consumer goods means consumed by consumer. So this that value of final goods are two types, consumer goods and capital goods. Now the value of final goods, value of final goods are two types right here. Value of consumer goods and value of capital goods. Okay, value of consumer goods are also too important.
term. That term is consume within economic territory outside the economic territory. Okay, consume within that economic territory are also two types: private sector एंड पब्लिक सेक्टर. ये तुम्हारा जनरल नॉलेज की तरह है, ये तुम लोग देख भी रहे हो इंडिया में. कंज्यूम विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या देखते हैं हम लोग? प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. सॉरी, ये एक्सट्रीमली सॉरी, ये हम लोग ये लिख लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही पब्लिक सेक्टर चलाता है. प्राइवेट सेक्टर consumes private sector consumes of domestic goods. Government sector consumes of domestic goods. Here outside the economic territory means what? Outside the economic territory means export of consumer goods. On the other hand, value of capital goods. देखो, कैपिटल गुड्स के बारे में मैंने पहले ही बोला था. कैपिटल गुड्स जब भी देखोगे उस समय तुम लोग सिर्फ एक चीज याद रखना, वो है इन्वेस्टमेंट. सर इन्वेस्टमेंट मीन्स जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, तुमने बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट किया, ये वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ. LIC में तुम्हें डिपॉजिट किया, वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हुआ. फिर तुमने कुछ लैंड पे इन्वेस्ट किया, तो वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ. सो दैट इन्वेस्टमेंट्स आर अंडर वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स. सो जो इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बोलने जा रहा हूं वो है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसके अंदर आएगा. दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. एंड चौथा है तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट. ओके, सो इनमें से देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट. इनमें से जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का सम. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का सम. ये जो नेट एक्सपोर्ट है, नेट का मतलब क्या हुआ? नेट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस
इम्पोर्ट इज इक्वल टू हम लोगों का नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, ये है तुम लोगों का कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ये अच्छी तरह से तुम लोग उठा लेना, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इसमें से हम लोग अभी बात करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स, that is import by private sector। ओके, ये दो चीज याद रखो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये दो तरीके का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स। ये डोमेस्टिक एंड फॉरेन को प्लस करो, ये चला आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये चीज याद रखो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो अभी ये तो गया एक नंबर, वो है दूसरा नंबर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बारे में बोलेंगे। ये लास्ट पार्ट है आज की क्लास का। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो है consumption expenditure on domestic goods plus consumption expenditure on foreign goods, same import by गवर्नमेंट सेक्टर। ये चीज याद रखो। सो मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स, सेम तरीके से कंजम्पशन मैंने बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, ये चीज याद रखो। ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये सिंपली रेफर करता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, दैट इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल होगा, मगर ड्यूरेबल में तुम लोग हाउस को इंक्लूड नहीं करोगे। सो हाउस जो है वो तो ड्यूरेबल रहता है, तो हाउस को इंक्लूड नहीं करोगे। सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, वो तुम्हारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। सो गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट on various administrative services like defense, law and order and education etc. Government produces goods and services
with the aim of social welfare without any intention of earning profit. So ये एक्सपेंडिचर ऐसे हम लोग लिखेंगे. तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट एंड that COE paid by the government and direct purchase from abroad. So this call, तो purchase from abroad means import. ये चीज़ याद रखना. इसको इलेबोरेटली डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का होगा. ओके.